Hello all, you're watching The Print. I am Rishika Sadam. And today we are here at Hyderabad's Numaish, which is an annual All India Industrial Exhibition. And this is the 81st year. And as the name goes, this particular exhibition, which is spread over acres of land, attracts traders from not just across the country, but also from other countries such as Afghanistan and Bangladesh. And this time, the Exhibition Society, the management that manages this vast, huge exhibition, had assured that they would host around 2,500 stalls, invite traders from not just within the country but also from other countries such as Iran, Thailand. But things didn't go as planned. Although around 30% of the traders had already come in by the last week of December, because this event happens in Hyderabad for 45 days, that's from Jan 1st till the mid of the Feb. Things didn't go as planned when the City Police Commissioner on Thursday issued an order asking for permanent shutdown of Numaish. The police order means that Numaish 2022 cannot be held. The exhibition was cancelled last year too, keeping COVID cases in mind. But now, at least 30% of the traders have already come in, bought lakhs worth of consignment, spent lakhs on taxes and transportation of getting all the stock here to the city, which they hoped that they would sell. Now they're only left with two options: either take it back, spend some more and take it back to the state where they've come from, the entire consignment, or sell it here to the local traders at a loss. The Print brings you this story from the center of Hyderabad, where a sudden surge in COVID cases, and not just in Telangana but also across the country, has shattered the livelihood of many traders who are in Hyderabad right now and giving them an unexpected blow right at the beginning of the year. On an ideal day, this place would be crowded with people, hundreds of stalls, each stall surrounded by at least 30 people bargaining. The traders would be so busy that they could not cater to each and every customer. From clothing to accessories to food to electronics, you name it, there would be a stall for every item that a customer would want to purchase. The sale would be in lakhs. Each trader would get at least 15 lakh rupees worth of their product consignment to sell in this 45-day exhibition, which would begin in January. But this year, it ended even before it could start. Stalls are now being dismantled, electricity connections being removed, carpentered wood removed. The traders are packing up, uncertain about their future. Meet 25-year-old Ansur, who came to Hyderabad all the way from Kashmir to set up a stall, hoping to sell leather goods worth rupees 12 lakh. He had purchased it from a local trader in Srinagar. Ansur now has no option but to keep the goods with himself, because even the local trader would not take it back. कहाँ से आए आप? श्रीनगर श्रीनगर से। जी। तो आप यहाँ क्या बेचने आए थे? लेदर गुड्स, लेदर। जैसे आप देख रहे हैं लेदर जैकेट्स, बैग्स वगैरह, तो वही। तो कितना वर्थ का सामान लेके आए थे? 10 to 12 lakhs। 10 to 12 lakhs। हाँ। उस पे जीएसटी ट्रांसपोर्ट का 30,000 यहाँ से और 30,000 अब वहाँ से वापस रिटर्न करना पड़ेगा। तो वो लॉस है पूरा का पूरा हमारा। बस जो हमने इनको रेंट पे किए है और जीएसटी जो हमने भरा है इनका सर्विस, बस वही हमें रिफंड कर रहे हैं। बाकी जो भी यहाँ आने का कारपेंटर जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है ना, जैसे आप देख सकते हैं, ये 15 to 20,000 इसका वर्थ है, वो भी हमारा ही नुकसान है। तो बाकी सारा लेबर वगैरह वो हमारा ही। आपके साथ कितने लोग आए थे ये स्टॉल के लिए? 3 हैं। हम 3 हैं। हाँ 3 लोग आए। हाँ 3 लोग, और प्लस फैमिली भी है। तो जो भी रेंट है रूम वगैरह का, वो भी हमारा नुकसान ही है, टोटली लॉस है। कितना रेंट पे किया? हमने 18,000 जी 2 मंथ्स के लिए। तो यूजुअली आप जब यहाँ इतना 10-15 लाख का सामान लेके आते हो, वो बिक जाता है नॉर्मली? 70 to 80% बिक जाता है। बट अभी तो कुछ नहीं हुआ ना। एक्चुअली इन्हें श्योरिटी दी थी यहाँ पे हम कि एग्जीबिशन लग जाएगी, तो अब हम भी इतने दूर से आए, इतना सब ट्रैवल करके आए हैं, तो उसका भी अलग है ना। मतलब 4-5 पीपल हम ये आए हैं, तो उसका टिकटिंग वगैरह का भी खर्चा वो भी लॉस में ही है। लास्ट टाइम की तरह आपको पहले बता देते कि नहीं हो रहा तो बच जाता ना? जैसे कि 2021 में बताया था हमने कि पहले ही इन्होंने बोला था कि नहीं एग्जीबिशन नहीं लगने वाली है, तो हम भी प्रिपेयर थे कि हमने भी पैसे नहीं भरे थे। तो उस वजह से अब यहाँ आना आके एक दिन का एग्जीबिशन खोल के फिर से बंद करना, पूरा का पूरा लॉस है ना। कब निकल रहे हो आप? अब कुछ ही दिन के बाद ही निकल रहे हैं। अब वैसे भी यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है ना। आपका प्लान क्या है? मतलब प्लान बी क्या है? ये लोकल ट्रेडर को यहाँ दे देंगे या फिर वापस लेके जाना पड़ेगा? जिससे लिया है वो श्रीनगर से लिया है ना, जिस श्रीनगर के पास से लिया है, तो उनको भी पे करना पड़ेगा ना। वापस हमने उनका माल भेजा नहीं है, स्टिल हमें उनको पे करना पड़ेगा, तो वो भी लॉस ही है ना। वो कितना होगा अप्रोक्सीमेटली? 10 to 12 lakhs। 10 to 12 लाख। हाँ। सो ओवरऑल इट्स अ लॉस ऑफ 10 to 12 लाख। ये 10 to 12 लाख जितना भी माल है घर पे पड़ा रहेगा पूरे साल, तो उनको मगर पे करना पड़ेगा।
जब तब बिकेगा, जहाँ का कुछ होगा हाँ, तब। तब बिकेगा। अब जब नेक्स्ट ईयर आएंगे तो तब बिकेगा ना, तब तक वो 10-12 लाख उनको हमें पे करना पड़ेगा ना, तो वो चीज़ भी लॉस है। This is the famous Maut Ka Kuआ, or rather referred to as the Well of Death, where stunts are usually performed. Muhammad Ali from Jharkhand is one of the stars within the troupe and performs dangerous stunts on bikes for not just a huge applause, but also that's his livelihood. His loss is now close to 5 lakh rupees. आप हर बार यहाँ आते हो तो क्या परफॉर्म करते हो, क्या करते हो? मैं यहाँ पे बाइक चलाता हूँ, राइडिंग करता हूँ लड़के लोग के साथ में जी। तो इस बार तो नुमाइश हो नहीं रहा है, तो कितना नुकसान हो रहा है आपको? ये बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है हम लोग को। क्या क्या खरीद, मतलब क्या क्या आपने खर्च किया इनसे ये सब सेटअप करने में? ये देखो, मौत के कुएं के खर्च, ये मारुति का सर का खर्च अभी 5-6 लाख रुपया नुकसान जा रहा है। अभी लोडिंग वोडिंग पेंटिंग वेंटिंग लड़के लोग में खर्च होता है, ये नुकसान जा रहा है। और भी सारे आइटम झूला है, उनको भी नुकसान जा रहा है, सारे के सारे बहुत प्रॉब्लम में है अभी। What you see in the visuals are product stocks worth 2 crore rupees. There are bed sheets, curtains, shawls, and other clothing items. These traders have come from remote parts of Kolkata and they say that ideally they would have sold 80% of their stock. They spent about 20 lakh rupees only for shipping these goods, which are now getting packed again to go back into storage units or get shipped back later. माल लेके आने का फिर वापस जाने का, उसका 20 लाख तो नुकसान हो गया। हाँ वो तो होगा, 20 लाख से ज़्यादा नुकसान होगा हम लोग का। तो क्या करेंगे फिर? क्या करेगा बोलिए, हम्म। माल तो नुकसान में नुकसान चल रहा है ना, हम लोग क्या करें बोलिए। अभी माल हम लोग गोडाउन में जाके रख देगा। यहाँ किसी और को देने का इरादा है? नहीं नहीं, किसी का देगा नहीं, हम लोग घर इसके अंदर रख देगा। वहाँ बिका तो बिका। हाँ बिका तो बिकेगा नहीं, घर में रख के गोडाउन कर फिर हम निकल जाएगा। टिकट भी हो गया हम लोग 3, ये आपको संडे को जा रहा है सब वापस। ये माल कहीं बिकेगा क्या कहीं पे? कहाँ बिकेगा, और यहाँ बिकने के लिए आया, मेला जब बंद हो गया ये नुमाइश तो बिकेगा कहाँ। तो एग्जीबिशन सोसाइटी अगर आपको पहले बता देती, सोचो दिसंबर के पहले। हमारा पूरा ही बंद जाता, कोई नुकसान नहीं, सिर्फ ट्रेन में आना जाना का ही नुकसान होता, और क्या। हम लोग तो आता ही नहीं, अगर पहले डिक्लेयर कर देता जो नुमाइश बंद रहेगा, इस साल चालू नहीं होगा, जैसे इसका अगला साल, हाँ लास्ट ईयर जैसे 21 वो तो बंद हो गया था, उसमें हम लोग आया नहीं, कुछ नहीं हुआ। फिर ये लोग आज होगा कल होगा, 11th आवर में डिसीजन दिया जहाँ होगा, फिर हम लोग GST भरा, रैंक भरा, सब कुछ भर दिया, फिर उनके बाद ऐसा ही हो गया। Surendra Kumar Sahu from Lucknow was hoping to sell most of his 70 lakh worth products. He does agree that no amount of business is worth risking lives during the pandemic, but blames the police and politicians for being equally reckless and their actions leading to a surge in COVID cases. 75 लाख तक का माल स्टॉक में हम लोगों के पास है, वो सब रखा रह जाएगा। हम लोग अब खाली हैं, कोई भी इंतजाम नहीं है, कैसे हम लोग घर चलाएंगे हम लोग पर डिपेंड करता है कैसे करना क्या। बट ये सब स्टॉक हमारा फंसा रहेगा एक साल, पूरी पूंजी मेरी फंसी रहेगी। बच्चे आप सबके कैसे घर चलाएंगे? अरे तब चलाएंगे किसी तरह, मजदूरी करके, कोई काम करके, कुछ ना कुछ करके चलाएंगे काम। हम लोग चलाएंगे, कुछ ना कुछ काम करेंगे जाके लखनऊ में, किसी तरह चलाएंगे। बस ये पैसा हमारा जो पूंजी थी वो हमारी सब फंस गई। एक साल तक अगर नुमाइश दोबारा लगेगी तो ये पैसा हल होगा, न तब रखा रहेगा। क्योंकि 2020 लास्ट ईयर भी लगा था, लास्ट ईयर भी स्टॉक था, इसीलिए स्टॉक बढ़ गया। क्योंकि लास्ट ईयर का स्टॉक और न्यू ईयर का स्टॉक बढ़ गया, स्टॉक और इंक्रीज हो गया, और घर पे भी स्टॉक अच्छा खासा लगा हुआ है। अब उसको रखा रहेगा, फिर जब लगेगी नुमाइश तब बेचा जाएगा। ये मेरा माल को खड़ी लेगा, बैंक हमको लोन दे देगा 50 लाख रुपए के, जो लो आपका इतना स्टॉक है, हम आपको लोन बढ़ा दे रहे हैं आपका। वो तो कहेगा आपका ट्रांजेक्शन नहीं, बैंक बोलता है कि आपकी 7 लाख की लिमिट है, आपने एक साल में पैसा जमा नहीं किया है, तो आपका हम लिमिट बढ़ाएंगे नहीं। उस बेवकूफ़ को तो नहीं पता कि पैंडेमिक चल रहा है, बैंक को नहीं पता है कि हमारा 7 लाख का बैंक है, लिमिट है, हमने 2 साल से सेल नहीं की, तो हम सेल आउट कहाँ से देखो, सेल लिखाओ 35 लाख रुपए की, 5% GST देते हैं, 7 लाख का 35 लाख की GST हम सेल लिखाएं, 1.25-2 लाख हम गवर्नमेंट को दें पहले, तब वो हमारी GST, हमारी सेल, हमारी लिमिट बढ़ाएंगे। वो हम 2 साल से माल नहीं मिले तो कहाँ जाके इस माल को फेंकते हैं आके। सोसाइटी से या सरकार से किसी प्रकार कोई शिकायत नहीं, शिकायत है तो उनसे जो रैली कर रहे हैं, और खूब रैली में भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। मैं गुजारिश करता हूँ वो रैली में भीड़ इकट्ठा मत करें। रैलियों के अलावा लोग भी तो बाहर होटल में यहाँ वहाँ भर भर के जा रहे हैं। जा रहे हैं तो पुलिस क्या कर रही है? पुलिस रोके वहाँ पे, मास्क लगा, सोशल डिस्टेंसिंग हो रही तो वहाँ का पालन करें ना वहाँ पे आके। This is the 81st year of this exhibition, and most of these traders have been coming to the city for decades now. Their grandfathers had been managing stalls which have now been passed on to the younger generations. Shipping costs, stall rents, goods and services tax, all these are paid from their own pockets. Among those who are worst affected are the dry fruit traders from Kashmir. Unlike clothing or accessories, they do not have the option of shipping their items back as they fear damage, and neither can they store it for the entire year.
They're left with nothing but losses to worth lakhs. हम कश्मीर से आए थे ड्राई फ्रूट्स लेके यहाँ पे एग्जीबिशन, मगर रिसेंटली गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। बहुत नुकसान हो गया यहाँ पे। माल बुक किया था कश्मीर से, वहाँ से ख़रीदा था, यहाँ पे लगाने के लिए आए थे, बट 2 साल से बंद था। इस साल लगाने की कोशिश में था, पूरा माल फंस गया। अब वापस भी नहीं जा सकता है क्योंकि ये ख़राब हो जाएगा, इसलिए बहुत नुकसान है। कितना लाख का माल लेके आया था? लगभग 10-15 लाख का माल था। रिसेंटली बंद हो गया तो इसकी वजह से परेशानी है, पूरा माल फंस गया है यहाँ पे। ये ड्राई फ्रूट ये पहुँचेगा नहीं, गर्मी भी है और ये पूरा ख़राब हो जाएगा ट्रांसपोर्ट में। और माल लूज़ भी किया है, पैकिंग करके नहीं है, पूरा खोल के है, आप देखिए। The exhibition society, which manages this massive gathering, had assured the stall owners that their rent would be reimbursed. But for traders, that amount does not even cover 10% of their loss. The management in 2021 cancelled the exhibition much in prior owing to COVID spread in the country. This time, however, the state invited the traders in the last week of December only to temporarily suspend the exhibition on the second day it opened and shut it down permanently on the 5th day. The only relief is only 35% of the 1600 odd stalls have been set up, while another 25% had got their consignment to the city but were yet to exhibit it in the stalls. A majority of them had already left by Friday morning, a night after the city police commissioner's order to shut down the exhibition permanently this time. ये बहुत सारा सेल होता है इधर, इसीलिए तो उतना माल लेके आते हैं हम लोग सेल करने के लिए। अब क्या करेंगे मैडम, अब ऐसा हो गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते मैडम। पहले बताते तो कहीं और इंतजाम करते। हाँ, पहले बताते तो कहीं और इंतजाम कर। हर जगह तो प्रोग्राम कैंसिल ही हो रहे हैं ना, कहीं पे प्रोग्राम नहीं। हमारा ये आंध्रा में, यहाँ विशाखापट्टनम में भी था, वो भी कैंसिल हो गया। और भुवनेश्वर में था, वो भी कैंसिल हो गया। गुवाहाटी में था, वो भी कैंसिल हो गया। बेंगलोर था, वो भी कैंसिल हो गया। सब कैंसिल हो गए। तो कैसे मैनेज कर रहे हो? घर कैसे चला रहे हो? घर तो कहाँ, अब क्या करेंगे। बहुत उम्मीद से आए थे, यहाँ तो कैंसिल हो गया कोविड की वजह से, तो हम लोग अब वापस घर जाना पड़ेगा। It's not like the Telangana Health Department did not estimate that the state would probably see a surge in December or in January. It's more like a catch-22 situation. It's not like the government can allow any sort of mass gathering. But the traders here say, although they support the decision, they do say that some sort of prior planning and some sort of prior intimation would have saved them from the lakhs of losses which they have to bear today. This is Rishika Sadam for The Print from Hyderabad.